ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے، جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے، نہ ترقی اور خوشحالی۔ دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے۔ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں۔ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا کہ ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے۔ دشمنوں کے ناپاک عزائم کو بارہا شکست دی ہے۔ ہم دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوموں کو خوشحالی کی منزل ہمیشہ امن کے راستے سے ہی ملتی ہے۔ آزادی اظہار آئین کی طے کردہ حدود و قیود میں ہونی چاہیے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہزاروں شہداء وطن کی سلامتی اور خدمت کی خاطر قربان ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، بلکہ کثیر تعداد میں غیور عوام، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے۔ قربانیوں کا سلسلہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا کہ عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ سیاسی اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ افواج پاکستان اور عوام کا دل کا رشتہ ہے۔ افواج اور عوام کا مضبوط رشتہ ہی دشمن کی شکست کا ضامن ہے۔ پاکستان کی افواج اور قوم ملک کو دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا اصل اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں۔ سپاہی سالار نے کہا کہ جنوبی ایشیا کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم دفاع شہداء ملک بھر میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات، عسکری حکام اور شہداء کے اہل خانہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں شہداء کے آخری خطوط اور لمحات کے حوالے سے شہید کی ڈائری کے نام سے ویڈیو دکھائی گئی۔ شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت۔ پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین بیک وقت نیوی کے فلیٹ میں شامل۔ صدر مملکت آصف زرداری اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی تقریب میں شرکت۔ پی این ایس بابر ترکیہ، پی این ایس حنین رومانیہ میں تیار کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بحریہ میں 2 جہازوں کی شمولیت پر اظہار اطمینان، ٹیکنیکل ٹیم کو مبارکباد دی۔ ترکیہ اور رومانیہ کے تعاون پر اظہار تشکر، کہا کہ مضبوط بحریہ سمندری سرحدوں کی ضامن ہے۔ دونوں جہاز میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی تقریب۔ گورنر کامران ٹسوری نے کہا کہ 6 ستمبر نہ ہوتا تو ہم 14 اگست کی خوشی نہ مناتے۔ تقریب کے مہمان خصوصی شہداء کے اہل خانہ ہیں۔ کوئی شخص شہداء کے لواحقین کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ خدا را کوئی دوبارہ 9 مئی جیسی غلطی نہ کرے۔ ملک میں نفرت انگیز بیان یہ کچھ خریدار بھی ہیں۔ ہم سب نے مل کر وطن عزیز کی حفاظت کرنا ہے۔ افواج پاکستان ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، لیکن جو ہمارا اندرونی دفاع ہے وہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہیں، یہ کسی بھی قوم کی ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اس کو کراس کرنا، اس کو وائلیٹ کرنا کسی بھی محب وطن انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اور آج میں شہداء کی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज की लाहौर में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातह ख्वानी की। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। मरीम नवाज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जागती है तो हम सुकून से सोते हैं। मुल्क का अंदरूनी दिफा हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियाँ कौमों की रेड लाइन होती हैं। मरीम नवाज का शहदा की माओ को खराज तहसीन, शहदा के अहल खाना से मुलाकात की, बच्चों से शफकत का इजहार किया। कराची में मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की परवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। पाक फ़ज़ाइया के 74 कैडेट्स पेशा वाराना जिम्मेदारियों के लिए तैनात। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। उधर कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की शानदार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। असद कैसर समेत सूबाई वज़रा भी हमरा थे। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील की कारगिल वॉर के हीरो शहीद लालिक जान के मज़ार पर हाजिरी। यौम दिफा पर मुज़फ़्फ़राबाद में अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यादगार शहदा पर ख़ुसूसी तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात और आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर खेलों के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया, जब पाक फ़िज़ाइया ने भारत की फ़िज़ाई बरतरी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट से भी कम दौरानी में भारत के 5 लड़ाका तैयारी मार गिराए। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 104 तैयारी तबाह करके दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब तरामीम कल अदम करार देने का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत उस्मा ने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करता हूँ। जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। बहुत सी तरामीम के मुआमार बानी पीटीआई खुद थे। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया नैब कानून साबिक़ आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 रोज़ बाद बनाया। आइनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। अदलिया और मुक़न्नना को एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। जब तक कानून कल अदम ना हो, अदालतें कानून पर अमल की पाबंद है। पार्लियामेंट आइन से मुनाफी कानून बनाए तो अदालत का कल अदम का इख्तियार है। फैसले में कहा गया कि अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। पीडीएम हुकूमत में कई मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया। 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया, जबकि मुलजिमों का रिमांड 14 रोज़ का किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक तोशाखाना और अलकादिर के बेबुनियाद केस नैब के दायरे इख्तियार से निकलकर गैर मौसर हो चुके हैं। मुकदमात की कार्रवाई को बिला जवाज इल्तवा की नज़र करने के बजाय इन्हें फिल फौर ख़त्म किया जाए। कोर कमेटी के इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत। कहा गया कि चारों दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला सरासर बदनीयती पर मबनी है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद इंतजामिया का राबता पीटीआई के जलसे की जगह तब्दील। जलसा मवेशी मंडी के करीब ग्राउंड संगजानी में होगा। अली अमीन ने रहनुमाओं को आगाह कर दिया। पीटीआई की मरकजी रहनुमा जलसेगाह पहुंच गए, इंतजामियात का जायजा लिया।
इंफ्रा पार्टी केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI की 4 मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ और तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरखास्त भी खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री कल अदम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को अहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई की वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से मुलाकात। एक बार फिर बामक़सद मुज़ाकरात पर जोर दिया। महमूद चकज़ई ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक ख़ाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जिन्होंने आपको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है उनसे इख्तियार भी लें। कहा तहरीक इंसाफ वाले तो हमसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने का बिल भी मंजूर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद में चंद लोग जमा होकर पूरा शहर बंद कर देते हैं। तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालफत। बैरिस्टर गोहर बोले हमने दारुल हुकूमत को पिंजरा बना दिया है, ये अवामी हक को ख़त्म कर रहे हैं। इस बिल को कमेटी में भेज दें। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कराची कारसाज हादसे में अहम मोड़। वर्षा ने मुल्जिमान नताशा को मुआफ़ कर दिया। फरीक़ैन में मामलात तय पा गए। जबहा के इमरान आरिफ और आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दियत के तौर पर अदा की गई। अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की। मुतासरीन की किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। हादसे में ज़ख्मी अफराद से भी सुलह हो गई। ज़ख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई। कराची की मुकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा की ज़मानत मंजूर कर ली। मुल्जिमा का 1 लाख रुपए की ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारी से परिंदा टकरा गया। जहाज़ को वापस कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रनवे पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मुसाफिरों को भी झटके लगे। मुसाफिरों को तैयारी से उतार कर परवाज़ को मनसूख कर दिया गया।